پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ پھر یسوع نے بڑی آواز پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ میرے عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس ورس پہ غور کریں گے کہ یسوع مسیح کو ہر طرح کا دکھ دیا گیا۔ یسوع مسیح کو ہر طرح کا دکھ دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ یسوع مسیح یہ کہتے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، یسوع مسیح کو فزیکلی دکھ دیا گیا، یسوع مسیح کو ذہنی طور پہ ٹارچر کیا گیا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یسوع المسیح ان سارے لمحات میں سے گزر رہے ہیں تو وہ کسی بھی چیز کا انکار نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو، جب یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا، تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے اوپر تانا زنی کرنا شروع کر دی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کے اوپر تانے کسنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتے تھے۔ میرے عزیزو، انہوں نے یسوع مسیح کو مارا، انہوں نے یسوع مسیح کو ستایا، انہوں نے یسوع مسیح کو ہر طرح کا دکھ دیا، انہوں نے یسوع مسیح کے منہ پہ تھوکا، انہوں نے یسوع مسیح کو تانے کسے، اور پھر انہوں نے ایک اور کام کیا کرتے تھے، وہ ایک کپڑا لے کے یسوع کے زخموں کے اوپر پھینکتے تھے، اور جب اس کپڑے کو کھینچتے تھے تو میرے یسوع کے وہ زخم جو پہلے ہی خون کی تاب میں تھے، جو پہلے ہی بھرے ہوئے تھے، ساری چیزوں سے پورا جسم چھلنی تھا، وہ جب کپڑے کو کھینچتے تھے تو میرے اور آپ کے مسیحا کا جسم ایک دفعہ پھر کھل جاتا تھا۔ اور جب ہم ان سارے مراحل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیوں ابلیس ان ساری چیزوں کو کر رہا تھا۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کوئی جانتا ہے کہ کیوں ابلیس طرح طرح کا ظلم اس کے خلاف کروا رہا تھا؟ کیوں؟ تاکہ کسی وقت بھی یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ یہ ہلاک ہو جائے، یہ مر جائے، یہ صلیب تک نہ پہنچے، یہ اپنے اس کام کو پورا نہ کرے، اپنے باپ کی مرضی کو پورا نہ کرے، بلکہ یہ راستے میں ہی ہلاک ہو جائے۔ اس لیے ابلیس جو ہے جبرن خداوند یسوع مسیح پہ ظلم کرواتا رہا، اور اپنی ہر طاقت وہ استعمال کر رہا تھا اس وقت، کہ وہ چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب کے کام کو پورا نہ کرے، بلکہ راستے میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جائے۔ لیکن ایک چیز میرے عزیزو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یسوع المسیح جب اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے تو وہ کسی انسان کی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے تھے۔ آمین۔ وہ کسی انسان کی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آیا، بلکہ وہ کس کی مرضی سے اس دنیا میں آیا؟ اور جب وہ واپس جا رہا ہے تو تب بھی باپ کی مرضی سے واپس جائے گا، اور اگر وہ دنیا میں آیا باپ کی مرضی سے تو جائے گا بھی وہ باپ کی ہی مرضی سے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ باپ کی مرضی کے بغیر باپ کے پاس جائے۔ اس مسیح کو کہنا پڑا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور بڑے آرام سے یسوع مسیح نے الفاظوں کو کہتے ہوئے یقین بھی تھا، اعتماد بھی تھا کہ میں اپنی روح صحیح جگہ پہ ڈیلیور کر رہا ہوں، صحیح جگہ پہ سونپ رہا ہوں۔ آج ہمیں بھی ہمارا بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن میرے عزیزو، جب وہ اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونپتا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے صلیب کے مناظر پہ غور کریں گے۔ ذرا یسوع مسیح کے ساتھ کتنے ڈاکو تھے؟ سینٹر ڈاکوਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਦਾਈ ਦਬਾਏ ਦੋ ਡਾਕੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੈਂਟਰ। ਆਮੀਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, एक बात समझने की जरूरत है कि मेरे और आपके मसीहा ने कोई गुनाह नहीं किया था। आमीन। उसकी जिंदगी में गुनाह का तस्वर ही नहीं है। उसने एलानिया इस बात को कहा, यूहन्ना की इंजील 8:46 में, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? ऐसा इकरार वो ही कर सकता है जो अपने आप में बड़ा कॉन्फिडेंट है, जो अपने आप में बड़ा एक रोब रखता है, कहता तुसी
साबित करके आओ, मैं उन्हें चीज़ां हूं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित। मेरे अजीजों ये कुछ छोटी स्टेटमेंट नहीं है। बाइबल मुकद्दस कहते हैं बातों बातों में खता ना करो, मतलब खुदावंद यीशु मसीह की लाइफ बेऐब थी, उसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। आमीन। और जब हम देखते हैं तो एक बड़ी खास बात हम इस जगह पे देखते हैं कि जब हम डाकुओं को सलीब पे देखते हैं तो हमें नजर आता है कि डाकुओं की हड्डियां तोड़ी गई थी। हाँ जी, डाकुओं की टांगे, लेकिन मसीह की नहीं तोड़ी। उसकी रीजन क्या थी? आमीन, पेशेंट को ही पूरी हुई थी। हालेलुया। खरूज 12:46 आयत में लिखा है कि ना तुम उसकी कोई हड्डी तोड़ना। ये जब फसा का वक़्त होता था, फसा के लिए जो कानून और ज़वाबत बनाए जाते थे, उसके लिए कहा जाता था कि जो बर्रा तुम ले रहे हो उसकी हड्डी को नहीं तोड़ना है। पुराने अहदनामा में हमें बैल बछड़ा वो बर्रा नजर आ रहा है, लेकिन नए अहद का जो बर्रा है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और जब इस जगह पे वो पहुंचते हैं तो पेशेंट कोई पूरी होती हुई नजर आ रही है कि उन्होंने यीशु मसीह की कोई हड्डी नहीं तोड़ी है, क्योंकि वो फसा का बर्रा था। आमीन, वो फसा का बर्रा था। और जब हम ज़बूर 34 उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। यसू जदों ने चेक किया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पहले किया, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और सीन क्या हुआ, जब उसको पता चल गया कि सेंटर वाला बंदा मार चुका है, जिंदा नहीं है, लेकिन साइड वाले दी हड्डियां तोड़ दी है। क्योंकि रीजन क्या थी कि उससे अगला दिन जो था वो सब्त का दिन था, और यहूदियों ने इस चीज की कानून में पासदारी करवाई हुई थी कि अगर अगला दिन कोई ईद का दिन होता है तो सीन क्या होगा कि जो भी बंदा सलीब पे हैंगे हम उसको मार देंगे, और उसको मारने के बाद नीचे उतार लेंगे, और शाम के वक्त तक उसको नीचे उतार लिया जाता अगर अगला दिन ईद का होता। अगर मेरे अजीजों एक चीज और मैं बताता चलूं कि जो सलीबी मौत है ये बागियों को दी जाती है, लेकिन मेरा और आपका मसीहा बागी मसीहा नहीं था। मेरा और आपका मसीहा बागी नहीं था। वो दो डाकू जो थे वो अपने गुनाहों के सबब से सलीब पे थे, और मेरा यीशु हमारे गुनाहों के सबब से सलीब पे है। फर्क देखिए, डाकू ताना नजर नहीं करता, वो उधर भी नजर आ रहा है। वो कहते हैं कि तुझे, दूसरा डाकू क्या उसको बोलते हैं कि तुझे ख्याल नहीं है कि इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया। देखें, जब दुनिया की बात होती है कि दुनिया बराबर को छुड़वा देती है, लेकिन यीशु को पकड़वा देती है। ये है शैतान का काम, और आज शैतान भी ऐसा ही कर रहा है कि वो हमें ऐसी जगहों से रोक लेता है जहां पे हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए जा रहे होते हैं। शैतान रोक लेता है, अपना पैरा डाल देता है और हम रुक जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आज समझने की बात ये है, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को यीशु मसीह को सलीब पे महफूज किया कि इसकी कोई हड्डी नहीं टूटेगी, तो खुदा ने उसको महफूज किया। और पेशेंट गोइयां जो पुराने अहदनामे में थी, नए अहदनामे में वो पेशेंट गोइयां पूरी होती नजर आ रही है। और सारा काम जब तमाम हो गया तो तमाम होने के बाद यीशु मसीह ने क्या किया, अपनी रूह को बाप के हाथों में सौंप दिया। और जब तक मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तब तक यीशु ने अपनी रूह को बाप के हाथ में नहीं सौंपा है। समझने की बात इधर ये है कि मेरे और आपके मसीहा को ना उनके ताने मार सके, ना वो भारी सलीब मार सकी, ना वो कोड़े मार सके, ना वो जो वो तरह तरह का जुल्म कर रहे थे वो मार सका, बल्कि उसने खुद ही सलीब पे कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसके बाद यीशु मसीह की मौत हुई, क्योंकि जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होना था तब तक यीशु मसीह की जिंदगी में जो जो कलमात थे उन्होंने वो कहने थे। ऐसा हो नहीं सकता कि यीशु मसीह सलीब को उठाए, कलवरी की तरफ गामजन है और रास्ते में मौत हो जाए। ये खुदा की अल्लाह की जात को चैलेंज है। आमीन। और इब्लीस क्या सोच रहा था, यीशु सलीब तक ना जाए, रास्ते में मर जाए, मतलब कि इब्लीस अल्लाह की जात को भी चैलेंज करने की कोशिश कर रहा था। देखें
कि वो किस तरह सारी चीजों को करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, ये जब सलीब का वाकया हम अपने सामने रखते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु ही है जिसने हमारे लिए सलीब को उठाया था। हमें और जब हम एक और बात इस जगह पे सीखते हैं, चौथे कलम में जो हमने सीखी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सलीब पर यही यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि लोग समझ रहे थे कि इनका आपस में जो है वो रिलेशन कट हो गया। ज़बूर 22 निकाली, उसकी 6 वर्ष जरा पढ़ेंगे जल्दी जरा। सलीब के पैगाम की बात कर रहा हूँ, जल्दी पढ़ के जरा इसको वाइंड अप करेंगे। ज़बूर 22 6 वर्ष। पर मैं तो कीड़ा हूं, इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा हूं, लोगों में हकीम। मेरे अजीजों, कीड़े का मतलब इधर है कि छोटा। कीड़े का मतलब क्या है? छोटा है। कहते कि ये इंसान नहीं, आदमियों में अंगुष्ठ नुमा। अब इसका मतलब क्या है कि आदमियों में अंगुष्ठ नुमा होने का मतलब ये है कि वो अपने आप को उधर भी धीमा कर रहा है। क्योंकि जब वो अपन कहता है कि आदमियों में अंगुष्ठ नुमा, तो रिप्रोच बाय मैन, ये वो बेइज्जती, वो इंसल्ट है जो किसी इंसान की जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह इन सारी चीजों को फेस करते रहे। आगे लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मुज़हका उड़ाते हैं। मतलब कि यीशु मसीह को ठट्ठा मारते हैं, यीशु मसीह को मजाक करते नजर आते हैं। वो मुंह चढ़ाते हैं। मुंह चढ़ाने से मुराद कि वो खड़े होकर कहते हैं कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो बच जा। वो सर हिला कर, जब आप किसी दुश्मन के सामने सर हिलाते हैं तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। फील होता है कि यार एक बंदा चीजों को फील कर रहा है और दूसरा बंदा जो है उसको ताने से नहीं कर रहा है। आगे लिखा है, अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वो ही उसे छुड़ाए। सीधा 12वें वर्ष में पढ़ेंगे, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बस्सन के जोरावर सांड मुझे घेरे हुए हैं। अब सांडों से मुराद, अब ये चीज मत सोचिएगा कि यीशु मसीह की सलीब के चुगिर्द जो वो बड़े बड़े जो सांडे होंगे ने, संडे वो आगे ने, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक रेवलेशन है। बहुत से सांडों से मुराद ये है कि इब्लीसी कुव्वतों ने, इब्लीसी ताकतों ने, सारी उन चीजों ने मुझे घेर लिया हुआ है कि अगर मैं इधर को सर उठाता हूं तो मुझे इधर भी सारी चीजें प्रॉब्लम्स में नजर आती हैं, इधर भी उठाता हूं तो क्यों कि उस वक्त यहूदी लोग जो थे, ये सांडे जो थे, इन्होंने उसके बुत बनाए हुए थे और ये उनको पूजते थे। और आज भी आप लोगों ने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फोन करके कहते, पास्टर साहब मैनू मेरे ख्वाब दे विच जानवर नजर आते, मैनू मेरे ख्वाब च संडा नजर आता, मैनू मेरे ख्वाब च सप नजर आता। मेरे अजीजों, जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ेंगे तो मेरे और आपके मसीहा ने इन सारे सांडों के ऊपर फतह से बढ़ के गलबा पाया हुआ है। उसने इब्लीस की सारी ताकतों को रोंदा हुआ है। ये सांडे वो ही हैं, ये इब्लीस की ताकतें हैं, बीमारी है, परेशानी है, कमी है, कमजोरी है। लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने क्या किया है? इन सारी कुव्वतों के ऊपर क्या किया है? गलबा पाया हुआ है। और इब्लीस क्या चाहता है कि इंसान जो है वो चीजों में फंसा रहे, खुदा की तरफ ना आए और वो उस गलबा को हासिल ही ना करे जो खुदा उसको देना चाहता है। आज हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने, खुदा के प्यारे बेटे ने हमारे लिए चीजों को अपने ऊपर लिया और हमें इन सारे वजनी सांडों से, बीमारियों से, इब्लीस के घिनौने कामों से, जैसा जुवेद भाई ने अपने कलमे में कहा कि इब्लीस जो है वो घिनौने मजाकों से, सारी चीजों से खुदा ने हमें छुड़ाया है। और खुदा हमें कभी भी जो है इब्लीस के हवाले नहीं करना चाहता था। ये बात समझने की है कि आज भी जो यहूदी लोग हैं ना, वो जब अपने बिस्तरे पे जाते हैं ना तो वो एक बात बोलते हैं रात को सोने के टाइम पे। वो भला क्या बोलते हैं? मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं कि ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हमें भी अपनी रूह को यीशु के हाथों में सौंपते रहना है।
हर वक्त हमें अपने आप को यीशु के हाथों में सौंपते रहना है। जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं तो सिर्फ 2 मिनट की दुआ है। बिस्तर पे बैठ के कहिए कि ऐ खुदाए बाप, ऐ खुदाए पाक रूह, मैं अपनी रूह, अपने बच्चों को, सबको तेरे लहू में छुपाती हूँ और तेरे हाथों में सौंपती हूँ। पता नहीं मुझे कल का दिन क्या होने वाला है। आज हम इस कलमे से यही सीखते हैं कि बाप ने, यीशु ने जब अपनी रूह उसके हाथों में सौंपी, मैं ये नहीं कह रहा कि तुसी रूह सौंपोगे तो अगला दिन नहीं देखोगे, नो, मेरे कहने का हरगिज मतलब नहीं है। दैट इज प्रोटेक्शन। क्या आप यीशु के लहू में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, छुपा रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे लहू को अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर मांगती हूँ, तू इनकी हिफाजत कर, इनके ईमान को, इनकी रूह को तू महफूज कर, ताकि जब हम, और फिर उसके बाद अगला काम करना है। जब आप सुबह उठे तो उठते ही आप कहें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी पूरी फैमिली तेरे लहू में महफूज रही और तूने इनकी रूहों को सलामत रखा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेरे अजीजों, ये यहूदी लोग, बनी इस्राएल के लोग ऐसा करते थे, और आज शाम हम इस कलमे से यही सीखते हैं कि हमें भी अपनी जिंदगियों में अपनी रूह को, आमीन, चलो रूह की गल नहीं करते, लोग दुखी हो जाते हैं और सन मारन का सोच रहे हैं। मैं अपनी करके तो अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को यीशु के हाथों में दे दे, फिर तो हम ख्वाब नहीं आएंगे, फिर तो हम शैतान नहीं सताएगा, फिर तो हम मैंडा नहीं सताएगा। तो क्यों कि यीशु मसीह ने इन सारी चीज़ों ते फटा ते बढ़ के गलबा पाया। अगर यीशु पा सकता है तो उन्हें क्या है कि मैं यही इख्तियार तो नहीं देना। आमीन। आज शाम इकरार करो, आओ उसे अपनी अखां बंद करिए, अपने सरां झुकाइए, दुआ करांगे।